عالمی یہودی تنظیمیں یہ کتاب مشہور مصنف مفتی ابوالبابا شاہ منصور کی تحریر کردہ ہے، جن کی کتاب دجال کب کون کہاں نے کافی شہرت پائی تھی۔ عالمی یہودی تنظیمیں یہ کتاب یہودیوں کی عالمی تنظیموں، خفیہ تحریکوں اور ان کی دنیا پر اثر انداز ہونے کی سازشوں کے بارے میں ہے۔ کتاب میں یہودی تنظیموں کی مختلف اقسام بتائی گئی ہیں، جن میں براہ راست یہودی تنظیمیں، بالواسطہ تنظیمیں، مسلمانوں میں مشہور یہودی تنظیمیں اور امریکہ میں سرگرم تنظیمیں شامل ہیں۔ کتاب کا بڑا حصہ فری میسن تنظیم پر مبنی ہے، جس میں اس کا مطلب، تاریخ، اغراض و مقاصد، تنظیمی ڈھانچہ، خفیہ علامات جیسے کہ آنکھ، ڈالر کا نشان وغیرہ، خفیہ اشارات اور مشہور ارکان کا ذکر ہے۔ فری میسن کی سازشیں، مسلمانوں میں بداعتقادی پھیلانا، معاشرے میں انتشار برپا کرنا، سلطنت عثمانیہ کے سقوط میں فری میسنری کا کردار اور پاکستان میں اس کی سرگرمیاں ذکر کی گئی ہیں۔ کتاب میں نہ صرف یہودی تنظیموں کے متعلق بتایا گیا ہے، بلکہ یہودیوں، ان کی مسلمانوں کے اندر سازشوں، ان کے اعلی کاروں اور دنیا کی سیاسی شخصیات کے متعلق ایسے ہوش ربا انکشافات اور حقائق پیش کیے گئے ہیں کہ جن کو پڑھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ کتاب عالمی سطح پر کام کرنے والی یہودی اور صہیونی تنظیموں، خاص کر فری میسن، ان کے عزائم اور دنیا بھر میں ان کے اثر رسوخ پر تفصیلی روشنی ڈالتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کتاب میں مسلم دنیا کے خلاف مبینہ سازشیں، یہودیت کی تاریخ اور عالمی یہودی اور دجال کی ریاست کے قیام کے حوالے سے یہودی نظریات بھی پیش کیے گئے ہیں۔ کتاب کے مقدمے صفحہ 10 پر مصنف لکھتے ہیں کہ یہودیوں کا مسئلہ یہ نہیں کہ دنیا انہیں ان کے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے دے، نہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ فلسطین میں انہیں ان کی آبادی کے مطابق ایک خطہ مل جائے۔ ان کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے ہر غیر یہودی کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ صفحہ 11 اور 12 پر لکھا ہے کہ یہودی اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے جھوٹ کا سہارا لینے سے دریغ نہیں کرتے۔ اسرائیل کے قیام کا جواز پیدا کرنے کے لیے یہود نے ہولوکاسٹ نامی عظیم ترین جھوٹ گھڑا۔ کہا جاتا ہے کہ جرمنی میں ہٹلر کے برسر اقتدار آنے کے بعد اور دوسری جنگ عظیم کے دوران 60 لاکھ یہودی نازیوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترے، جبکہ ورلڈ المانک رپورٹ کے مطابق تقریباً 59,000 یہودی مارے گئے۔ صفحہ نمبر 16 پر ہے کہ اسرائیلی صدر پیرز نے پرویز مشرف کو پہلا سرکاری خط اکتوبر 2007 میں تحریر کیا تھا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے ان کی کوششوں کی تعریف کی تھی۔ پرویز مشرف نے بھی سرکاری طور پر خط تحریر کر کے اس کا جواب دیا تھا اور اسرائیلی صدر کی حمایت اور ان کی نیک خواہشات پر شکریہ ادا کیا تھا۔ صفحہ 17 پر لکھا ہے کہ پیرز وہ پہلا اسرائیلی رہنما تھا جس نے اکتوبر 2001 میں یہ کہا تھا کہ وہ ہر صبح کو پرویز مشرف کی زندگی کے لیے دعا کرتا ہے، کیونکہ پرویز مشرف نے پاکستان کی افغان پالیسی تبدیل کی۔ اسی صفحہ پر ہے کہ سفارتی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پرویز مشرف اسرائیل میں سب سے مقبول پاکستانی رہنما ہیں۔ وہ پہلے پاکستانی رہنما تھے جنہیں 2005 میں امریکہ میں ورلڈ جوئش کانگریس سے خطاب کی دعوت دی گئی تھی۔ کتاب میں یہودیوں کی 1 درجن سے زیادہ تنظیموں کا ذکر ان کے قیام، کام اور مختصر تاریخ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ان میں سب سے پہلی اور اہم تنظیم جس نے یہودیوں کی الگ ریاست کے لیے دنیا بھر کے یہودیوں کو اکٹھا کیا اور تحریک چلائی، وہ ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن ہے جو 1897 میں بنائی گئی تھی۔ ان تمام یہودی تنظیموں کا مجموعی طور پر کام یہ ہے کہ دنیا کے تمام یہودیوں کی خبر گیری کرنا، ان کی مالی، سیاسی، عسکری اور اخلاقی مدد کرنا، ان کے لیے ایسا پلیٹ فارم قائم کرنا جہاں سے وہ پہلے اپنے ارد گرد اور پھر دنیا کو اپنے شکنجے میں کرے اور عالمی سیاست اور معیشت پر قبضہ کرے۔ کتاب میں یہودی خفیہ تنظیم فری میسن کے متعلق بڑی تفصیل بیان کی گئی ہے، جس میں فری میسن کا مطلب، ان کی طرف سے استعمال کرنے والی نشانیوں کا مطلب اور مقصد، فری میسن کا ایجنڈا، فری میسن کا طریقہ کار، اس کے اغراض و مقاصد، فری میسن کا نظام، اس کے پیغامات، فری میسن کے خفیہ اشارات اور فری میسن سے منسلک چند مشہور شخصیات کے بارے میں لکھا ہے۔ صفحہ 44 پر لکھا ہے کہ فری میسن مسلم ممالک خصوصاً پاکستان اور سعودی عرب سے اسرائیل کو تسلیم کروانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے حقیقی ہدف عالمی دجال کی ریاست کے قیام اور بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کے صحن دجال کے محل کی تعمیر کی راہ ہموار کر لے۔ یہ بات ذہن میں رہے، اس کتاب کی اشاعت سال 2014 کی ہے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 56 اور 57 پر امریکہ کی رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ کے حوالے سے مسلمانوں کے 4 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے: بنیاد پرست، قدامت پسند، جدت پسند اور سیکولر۔ یہودی تنظیمیں مسلمانوں میں موجود جدت پسند اور سیکولر گروہوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور ان کے لیے چاہتی ہے کہ سیاسی اور عالمی سطح پر اوپر آئیں۔ صفحہ 63 پر فری میسن کے تعارف اور طریقہ کار میں لکھا ہے کہ فری میسن کے مرکز کو لاج کہا جاتا ہے اور اس کی رکنیت کے کئی مراحل یعنی لیول ہوتے ہیں جن کو ڈگری کہتے ہیں۔ فری میسن کا ہدف اعلیٰ طبقات ہوتے ہیں جن میں حکمران، افسران اور سیاسی و مذہبی شخصیات شامل ہیں۔ کتاب میں بڑی یہودی تنظیموں کی ذیلی تنظیموں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ انہی میں ایک نائٹ ٹیمپلرز ہے
जिस को मौजूदा फ्री मैसन तंजीम की मां कहा जा सकता है। नाइट टेम्पलर्स यूरोप के वो सलीबी जंगजू थे जो बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा करना चाहते थे और मुसलमानों से सलीबी जिहाद करते थे। इसी तरह एक ज़ैली तंजीम नौजवान तर्क के नाम से सफ़हा 81 पर बयान की गई है, जिसने जमहूरियत के नाम पर सल्तनत उस्मानिया में तहरीक चलाई थी। सुल्तान अब्दुल हमीद को यहूदियों ने कहा था वो फ़लस्तीन की ज़मीन पैसों के बदले यहूदियों को दे दे, मगर सुल्तान अब्दुल हमीद ने हिकारत से उनकी ये पेशकश ठुकरा दी थी। फ्री मैसन से मुंसलिक चंद मशहूर शख्सियात वाले बाब में लिखा है कि जदीद तुर्की का बानी मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ईरान का आखिरी बादशाह शाह रज़ा पहलवी, मिस्र का सदर जमाल अब्दुल नासिर और ईरान का वज़ीर आज़म अमीर अब्बास फ्री मैसन के सरगर्म कारकुन थे। मिस्र के सदर अनवर सादात की बीवी और फ़लस्तीनी रहनुमा यासिर अरफात की बीवी यहूदी थी। सफ़हा 112 पर पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की बीवी बेगम राना के मुतालिक हफ़ीज़ गोहर की किताब पाकिस्तान के हुक्मरान के हवाले से लिखा है कि वो पहले हिंदू थी, जवानी में ईसाई मजहब इख्तियार किया और फिर इसके इस्लाम कबूल करने में शक पाया जाता है। पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद की प्राइवेट सेक्रेटरी मिस रोथ बोरुल के मुतालिक कदरतला शहाब की किताब के हवाले से लिखा है कि इस खूबसूरत लड़की को गुलाम मोहम्मद वाशिंगटन से मुंतखब करके अपने साथ पाकिस्तान लाए थे। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद इंतकाल के बाद कराची के गोरा कब्रिस्तान में दफन किए गए, जो कि ईसाइयों का कब्रिस्तान है। पाकिस्तान के चौथे गवर्नर जनरल और पहले सदर मेजर इस्कंदर मिर्जा की बीवी नाहिद खानम पहले एक ईरानी सिफारतकार की बीवी थी, जिससे तलाक लेकर इस्कंदर मिर्जा से शादी कर ली। इस्कंदर मिर्जा के इंतकाल के बाद इसे ईरान के शाही कब्रिस्तान में दफन किया गया था। पाकिस्तान के 5वीं वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सहरवर्दी की भी एक बीवी अंग्रेज़ी खातून थी। पाकिस्तान के 7वें वज़ीर आज़म फ़िरोज़ खान नून ने भी बरतानवी औरत से शादी की थी और दोनों मिलकर शराब पीते थे। फ्री मैसन से मुंसलिक चंद मशहूर तहरीकों वाले बाब में मुसन्निफ ने कादियानी, बहाई और इस्माइली फ़िरकों का जिक्र किया है। फ्री मैसनरी से मुताल्लिक चंद मशहूर इदारों का जिक्र करते हुए मुसन्निफ ने रोटरी क्लब, लायंस क्लब और NGO के तारुफ और काम पर रोशनी डाली है। फ्री मैसन की ज़ैली तंजीमों में इल्लुमिनाटी, कमेटी ऑफ 300 और श्राइनर्स का जिक्र किया गया है। इल्लुमिनाटी के बारे में लिखा है कि इल्लुमिनाटी और फ्री मैसन अलग अलग तंजीमें थीं, जिनके माबैन इत्तिहाद 1782 में हुआ। इल्लुमिनाटी से मुराद है अक़ली मजहब और जमहूरियत की हामी खुफिया अंजुमन या फिर वो अफराद जो बसीरत या रोशन ज़मीरी के हामी हों। ये तंजीम एडम विशाट ने 1760 के अशरे में कायम की। वो एक पादरी था लेकिन चर्च से निकाल दिया गया। इंटरनेशनल बैंकर्स की सरपरस्ती में इसने ये तंजीम कायम की। 1 मई को बैंक हॉलीडे मनाने के पीछे यही सोच कार फरमा है। इस खुफिया सोसाइटी के अरकान चर्च की मुखालफत करते थे। उनके मंसूबे का असल हदफ तमाम मौजूदा हुकूमतों और मज़ाहिब का खात्मा है। अमरीका के फ्री मैसन सदर के बाब में है कि यूं तो अमरीका के सदर फ्री मैसन के मेंबर होते ही हैं, मगर साथ में उनके सलाहकार और पॉलिसी बनाने वाली टीम में भी यहूदी दानिश्वर और फ्री मैसन के लोग मौजूद होते हैं, जो उनके फैसलों और आलमी पॉलिसी पर असरअंदाज होते हैं। फ्री मैसन के मजहबी एजेंट का तज़किरा करते हुए मुसन्निफ ने कवाली और मूसीकी की मखलूत महफिलों और फितना गोहर शाही के मुतालिक लिखा है। किताब में फ्री मैसन के साथ मखसूस हथकंडे भी बयान किए गए हैं कि किस तरह फ्री मैसन दूसरे मुल्कों खासकर मुस्लिम ममालिक के सियासी और अवामी मामलात में मुदाखलत करते हैं। वो ये हैं: बासर हलकों में रसूख करना, मजहबी तबकात में रसूख हासिल करना, मुआशरे के अहम तबकात को एक दूसरे से दूर करना, यानी हुक्मरान, उलमा और अवाम के दरमियान फासिले और तनाज़ात पैदा करना, अवाम में अफरातफरी फैलाना, मजहबी रहनुमाओं में फूट डलवाना, मुखालिफिन को शहीद करना यानी टारगेट किलिंग, और जमातों में अपने एजेंट दाखिल करना। फ्री मैसन के साथ खतरनाक हरबे ये बयान किए गए हैं: दीनी, सियासी और अस्करी क़ियादत को बेएतबार या ख़त्म कर देना, एहसास महरूमी, शोरिश व इंतशार और गैरों से उम्मीदें, बेमकसद तनाज़ात, फजूल मुबाहिसे और फ़र्ज़ी मसाइल, क़ियादत के अहल अफराद के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा, मुखलिस अफराद को आपस में लड़वाना, मजहबी और इखलाकी पस्ती फैलाना और मजहबी उमूर को मशकूक बनाना। सल्तनत उस्मानिया के खात्मे में यहूदियों और फ्री मैसन तंजीम का क्या किरदार और हाथ था। इस हवाले से फ्री मैसन तंजीम के एजेंट का खत तर्जमा करके दिया गया है, जिससे वो खुद एतराफ़ करता है कि तुर्की और इसके इर्द गिर्द इलाकों और मुल्कों में कैसे मुस्लिम और गैर मुस्लिम अफराद फ्री मैसन तंजीम के साथ काम कर रहे हैं और सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। नाइट टेम्पलर्स के मुतालिक भी कुछ तारीख पेश की गई है और बताया गया है कि यही सलीबी जंगजू थे जो आगे चलकर फ्री मैसन और इल्लुमिनाटी तंजीम बन गए। किताब में इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के मुतालिक भी रोशनी डाली गई है कि ये इदारा बज़ाहिर तो मुख्तलिफ मुल्कों में लड़ाई झगड़ों और फसादात वगैरह की निशानदही करता और मशवरे देता है, लेकिन हकीकत में इस इदारे का काम ये बताना है कि उन लड़ाई झगड़ों और फसादात की असल वजह इस्लामी शरीयत, मुसलमानों का जिहाद करना, मौलवी, मदरसे और इस्लामी लिटरेचर है और हुकूमतों को चाहिए कि उन सब को बंद करवाए।
मुफ्ती अबुल बाबा ने एक शख्स का नाम जाहिर किए बगैर लिखा है कि वो लाहौर का रहने वाला है और 1980 की दहाई में लाहौर के फ्री मैसन ग्रुप का मेंबर बन गया था, मगर बाद में तौबा कर ली। लाहौर के माल रोड पर फ्री मैसन का दफ्तर मौजूद था, जिस पर 1983 में पाबंदी लगा दी गई थी। इस आदमी ने मुफ्ती अबुल बाबा को बताया कि पाकिस्तान के कई इदारों के लोग इस यहूदी तंजीम के रुकन थे और इस पर मजीद गुफ्तगू करने पर जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। किताब के बाब कनान से कनेटिकट तक में मुसन्निफ लिखते हैं कि अमरीका में आबाद होने और वहां अपने क़याम को यहूदी इसराइल से पहले अपनी अबूरी हुकूमत के तौर पर देखते हैं। कनान फ़लस्तीनी इलाके का नाम है जहां से यहूदियों को बाबुल के बादशाह ने निकाल कर ग़ुलाम बनाया था, और कनिकिट्टी किट के मानी हैं जदीद कनान। इसीलिए अमरीका के सरकारी निशान, अमरीकी इदारों की इमारतों और दीगर कई मामलात में यहूदी असर और फ्री मैसन के निशानात नजर आते हैं। जैसे व्हाइट हाउस असल में इस यहूदी आबादी को कहते हैं जो हैकल सुलेमानी से बाहर दुनिया में किसी जगह हो। हैकल सुलेमानी वो इबादतगाह है जिसको यहूदी मस्जिद अक्सा की जगह तामीर करना चाहते हैं। इसी तरह अमरीकी फौजी इदारे पेंटागोन की इमारत के 5 कोने हैं जो यहूदियों के अकीदे के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ढाल या महर जैसी है। अमरीका का सरकारी निशान और अमरीकी करेंसी पर बनी हुई डिज़ाइन पूरी की पूरी यहूदी और फ्री मैसन की अक्कासी करती है। पाकिस्तान में फ्री मैसन के दफ्तर, जिनको लाजिस कहा जाता है, के मुताल्लिक किताब के मुसन्निफ ने लिखा है कि पाकिस्तान में फ्री मैसन की 30 लाजिस थी, लेकिन मशहूर कराची, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर में थी। कराची में ये लाज प्रेस क्लब के करीब मौजूद है और अब एक सरकारी महकमे का दफ्तर है। रावलपिंडी में फ्री मैसन का इज्तिमा माल रोड पर होता था। लाहौर में फ्री मैसन लाज 1859 में कायम हुई। 1905 के ज़लज़ले में तबाह हुई तो दूसरी 1916 में माल रोड पर बनाई गई। आजकल वहां वज़ीर आला हाउस कायम है। पेशावर का फ्री मैसन टेम्पल और लाज जिस जगह था वहां आजकल जामिया इमदाद अल-उलूम मस्जिद दरवेश कायम है। किताब में कुछ चैप्टर्स में फ़लस्तीनियों की तहरीक और उनके जज्बा जिहाद के मुताल्लिक तहरीरों को शामिल किया गया है। किताब के आखिरी सफ़हात में चंद यहूदी इस्तिलाहात के नाम से 15 सफ़हात पर मुश्तमिल यहूदियों की इस्तिलाहों को उनकी मानी और मफ़हूम के साथ पेश किया गया है। किताब के बिल्कुल आखिर में मज़ामीन और मौज़ूआत से मुताल्लिक तस्वीर और नक्शे दिए गए हैं।